कि how to classify the singularities. So if differential equation having order 2, so it has various type of points. It has two type of points, ordinary and singular points. How to find out the given point is singular or some point is ordinary point? So you will be given differential equation having order 2, right? Always second order के differential equation ही होंगे. Okay, so just compare given equation with this differential equation, y double dash plus px y dash plus qx y is equal to 0. Sometime there will be a one function as a coefficient of y double dash, so we can divide by that function. Okay, यहाँ पे अगर इससे पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया px is equal to p1x by p0x and qx is p2x by p0x. तो एक्चुअली इक्वेशन कैसे बनेगा? p0x y डबल डैश प्लस p1x y डैश x प्लस यहाँ पे होगा p2x, बट मैंने p0x से डिवाइड करके px एंड qx लाने के लिए ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो कंपेयर गिवन इक्वेशन विद दिस स्टैंडर्ड और यू कैन से नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन. So let's revise our previous topic. So there are two types of points, singular point and ordinary point. What is the definition of ordinary point? If px and qx are both analytic at x0, both analytic. Analytic, it means if we are able to represent px and qx in as a Taylor series representation, then we can say it is analytic. Another way you can say it is differentiable. It is differentiable. So when function will be differentiable at particular point, if function is not undefined, then you can say differentiable. So is that p of x0 does not equal to 0 at x is equal to x0. So in which case px and qx will be analytic or differentiable. So if this p0x, देखो आप px और qx में देखो, ये जो डिनोमिनेटर में p0x है, तो वो जब नॉन जीरो होगा, जिस पॉइंट के लिए ये नॉन जीरो होगा, वो केसेस के लिए px एंड qx डिफरेंशिएबल हो जाएगा. इट मींस एनालिटिक हो जाएगा. सो दिस वे वी कैन फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट. देन x0 at x0 point px and qx are analytic, then x0 point is called ordinary point, or it is also known as regular point. Now think about singular point. देखो मैंने ये चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो आपको इजीली समझ में आ जाए. अब सिंगुलर पॉइंट. सो व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट? इफ x0 is not an ordinary point, another way you can say it is not an ordinary point. So what does it means if not an ordinary point? इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या था? px and qx both should be analytic. तो अदरवाइज केस में क्या आएगा? either px और qx और both not analytic. Right? दूसरे केस में क्या आएगा? px और qx और both are not analytic at x0. तो दो ही केस है इसमें, एनालिटिक और नॉट एनालिटिक. इसमें सिंगुलर और ऑर्डिनरी. So p of x0 is equal to 0 at x is equal to x0. Then you can say given point x0 is singular point. क्लियर? यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था. ओके, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. नाउ अगेन ऑर्डिनरी सिंगुलर टाइप. सिंगुलर हैज टू टाइप्स, रेगुलर सिंगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर. तो आज का ये टॉपिक है हमें रेगुलर पॉइंट एंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर. सिंगुलर के दो जो टाइप्स हैं. तो इसमें क्या करेंगे? व्हाट इज द कंडीशन टू चेक रेगुलर और इरेगुलर? So if x minus x0 px and x minus x0 square qx. So remember these two terms, x minus x0 px and x minus x0 square qx. याद रखना है. Both are analytic again at x0 point. Then now this singular point is known as regular singular point. Okay, एक कंडीशन ऐड हो गया, x minus x0 px and x minus x0 square qx. ये अब चेक करेंगे हम. These both are analytic. It means both are differentiable at given point x0. Then x0 is called regular singular point. In which case given point means कि singular point will be irregular singular point. So you can write otherwise. Otherwise means इसमें तो ये लिखा है कि ये दोनों टर्म एनालिटिक होने चाहिए. तो अदरवाइज में क्या आएगा? या तो ये नॉट एनालिटिक हो, या तो ये नॉट एनालिटिक हो, या तो दोनों नॉट एनालिटिक हो. ओके, वो अदरवाइज केसेस में. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिटेल में, इफ x minus x0 px और x minus x0 square qx और both are not analytic at x0, is that condition other than regular singular. यानी इसमें जो कंडीशन है उसके सिवा जो बाकी का केसेस, then x0 is called
an irregular singular point. Is it clear? Okay, now we will see the questions how to check the regular singular or irregular singular. So question ऐसे होगा, classify the singularity points of the differential equation. ऐसे केसेस, ऐसे एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, बट हमने कहां तक किए थे, रेगुलर है कि सिंगुलर है, यानी ऑर्डिनरी है कि सिंगुलर है, वहां तक ही चेक किया था हमने. अब हम आगे भी चेक करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, px एंड qx आइडेंटिफाई करना है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये डिवाइड करो, वी आर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये px होगा. px मीन्स y डैश का कोएफिशिएंट और qx मीन्स y का कोएफिशिएंट, ऐसे भी याद रख सकते. नाउ व्हाट इज p0x? p0x मीन्स ये डिनोमिनेटर पार्ट px और qx का, या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि जिसके थ्रू आपने डिवाइड किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे. नाउ इन ऑर्डर टू गेट सिंगुलर पॉइंट, टेक p0x इज इक्वल टू 0. सो डायरेक्टली ये भी सही है कि आपको अगर डिनोमिनेटर पार्ट चेक करना है तो इसके रूट्स निकाल दो, p0x के रूट्स. तो p0x जो है उसको 0 मान लिया और इसके रूट्स निकाले, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1. सो दिस आर दी singular point. Why we can say x is equal to 1 and minus 1 are singular points? Because at this point px and qx are not analytic. Not analytic means ये undefined हो जाता है, infinite हो जाता है. आप देखिए x 1 रखिए तो डिनोमिनेटर 0 होगा, उसके कारण px infinite हो जाएगा. Infinite हो गया, then you can say px is not differentiable at x is equal to 1, or you can say px is not analytic at this point. So all have same meanings. Clear? तो आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो रीजन के साथ. आप एक रीजन भी लिखना चाहिए. यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, px and qx are not analytic at x is equal to 1 and minus 1, then are singular points. All other points are ordinary points. यानी इसके सिवा बाकी के जो भी पॉइंट्स है वो क्या है, ऑर्डिनरी है. दो ही टाइप है पॉइंट्स की. इज दैट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1 एंड माइनस 1, except 1 and minus 1, all real numbers are ordinary points. Clear? Now we will go for further check. Now we will check the singular points whether it is regular or irregular. So now check for 1. तो है 1 and minus 1, तो पहले 1 के लिए हम सोचेंगे. What is the condition to check regular and singular? x minus x0 px and x minus x0 square qx. ये कंडीशन देखिए, x0 क्या है 1, तो यहाँ पे x0 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, और px जो था वो, और हमने चेक किया, ये सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल रहा है 6x डिवाइड बाय 1 प्लस x. सिंपल x minus x0 square qx where x0 is 1, then we are getting 4 into x minus 1 divided by x plus 1. Now think about this term, these two terms, x minus x0 px and x minus x0 square qx. So can you tell me at which point this function will be not analytic? Minus 1, at x is equal to minus 1. But here we are checking for x0 is equal to 1. So definitely these two terms are not analytic at x is equal to minus 1. But we are checking for x is equal to 1. So definitely these are analytic for 1. So here we can write both are analytic or differentiable at x is equal to 1. इसके लिए तो इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. 1 के लिए तो ये दोनों फाइनाइट वैल्यू ही हो रहा है. आप 1 रखो इसमें, x0 is equal to 1 रखो, x की जगह पे 1 रिप्लेस करिए, तो डिफरेंशिएबल ही है. इट मींस इट इज रेगुलर सिंगुलर, मींस एनालिटिक हो रहा है. नाउ फॉर x0 is equal to minus 1 अगेन. नाउ x0 equal to minus 1, 2 पॉइंट थे, उसमें से एक को चेक कर लिया, दूसरा चेक कर रहे हैं. x0 की जगह पे -1 रख दीजिए, तो टर्म आ रहा है 6x डिवाइड बाय x minus 1, और यहाँ पे ये आ रहा है 4 into x plus 1 divided by x minus 1. Now both are analytic, both are differentiable at x is equal to -1. हमें तो इसके लिए ही चेक करना है, -1 के लिए भी. तो अगेन आप अगर ये वैल्यू में ये फंक्शन ये जो आया उसमें आप x की जगह पे -1 रखोगे जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट नहीं होगा. अगर इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, और यू कैन से अगर डिनोमिनेटर पार्ट नॉन जीरो नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल है या एनालिटिक है.
तो both are analytic x is equal to -1, then again this point is also regular singular point. तो ये चेक करना है. एक और एग्जांपल चेक करते हैं ताकि आपको डिटेल में, जिसमें मैंने इरेगुलर पॉइंट भी लिया है ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए क्या डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर में, क्या डिफरेंस. चलो क्विकली जाइए फटाफट, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें, आपको आगे वाले क्वेश्चन में किया है. px एंड qx आइडेंटिफाई कर लिया. अब ये डिसाइड कर लीजिए px एंड qx. अच्छा, सिंगुलर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों इनफाइनाइट होने चाहिए. अगर कोई एक भी इनफाइनाइट हुआ px और qx में से तो भी आप लिख सकते हो कि वो सिंगुलर पॉइंट है. तो यहाँ पे 2 के कारण दोनों इनफाइनाइट हो रहा है, वेल एंड गुड. अगर एक भी होता तो भी चलता हमें तो. ओके, तो 0 एंड 2 आर सिंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि 0 के कारण ये भी तो 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, और qx इनफाइनाइट हो रहा है. तो डेफिनेशन तो ये बोल रहा है ना सिंगुलर की. सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है? px और qx और बोथ आर नॉट एनालिटिक. तो एक भी हो रहा है तो भी सही है, नो दोनों है तो भी सही है. ओके, बिकॉज px एंड आर सिंगुलर पॉइंट. रीजन यहाँ पे लिखा है मैंने, बिकॉज px एंड qx both are not analytic at x is equal to 2 and qx is not analytic at x is equal to 0. So all other points are ordinary point except 0 and 2. क्लियर? इसके सिवा बाकी के ऑर्डिनरी पॉइंट है. तो एक सेंटेंस ये भी लिख देना है. मैंने काफी बुक्स में देखा है ऐसे लिखा हुआ नहीं है, बट आपको लिखना है. ओके, at x0 is equal to 0. Now we have two singular points. Now we'll check further whether it is regular or irregular. So take x0 is equal to 0. x0 के पीछे 0 रिप्लेस किया. Now हमें मिल रहा है x by x minus 2. यहाँ पे मिल रहा है 6 by x minus 2. अब देखिए किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? 0 के लिए. तो आप ये जो x की जगह पे 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा है ना, वो चेक करना है. तो आप देखिए ये नहीं बन रहा है, यानी इसके डिनोमिनेटर में x टर्म नहीं है, इसके कारण ये टर्म नहीं बन रहा है, बट ये बन रहा है. देखो सेकंड वाला खंड. तो क्या होगा बताइए? तो ये जो टर्म है सेकंड वाला 6 बाय x माइनस 2, उसमें अगर हमारा जो ये पॉइंट हम जिसके लिए चेक करने जा रहे हैं वो पॉइंट अब हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये वैल्यू एनालिटिक नहीं हो रही है, नॉट एनालिटिक हो रही है. नॉट एनालिटिक इट मींस ये डिफरेंशिएबल नहीं है. डिफरेंशिएबल नहीं, उसका मीनिंग क्यों है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो होल टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यहाँ पे रीजन लिखा है, सिंस दिस टर्म is not analytic at x0 is equal to 0. It means x0 is equal to 0 is an irregular singular point. Got it? Now check remaining point 2 के लिए. 2 में क्या आ रहा है चेक करते हैं. x0 2 रखा आपने तो 1 आया, और सेकंड वाले टर्म में ये आया. अब देखिए ये तो फिक्स फाइनाइट टर्म हो गया 1, ये तो कभी इनफाइनाइट नहीं होगा, ये तो फाइनाइट वैल्यू है 1. और इसमें अगर 2 की वैल्यू रखोगे तो ये इनफाइनाइट होगा? नहीं होगा. डिनोमिनेटर 0 होगा? नहीं होगा. देन यू कैन से बोथ आर एनालिटिक. बोथ टर्म मींस दिस both terms are analytic at 2. So x0 is equal to 2 as regular singular points of the equation. Okay. Okay, next question. अभी हम ये सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, राइट? लास्ट लेक्चर में भी किया था. मैं आपको ये पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये इतने सम सॉल्व कर देना. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, लास्ट टाइम ये सम हमने किया था बट हमने रेगुलर सिंगुलर तक ही गए थे. यहाँ पे कौन सा पॉइंट ये 3 में से इरेगुलर सिंगुलर, कौन सा रेगुलर सिंगुलर है वो भी दिखाया है मैंने यहाँ पे. तो आंसर मैंने ये ऐसे फॉर्म में लिख दिया है. देखो 1 minus 2 0 are singular points. Now when you will check further you will get 1 as irregular singular, is लिखा है मैंने irregular singular, and minus 2 0 are regular singular point. अब प्रैक्टिस के लिए ये कंप्लीट कर देना. सेकंड क्वेश्चन ये भी हमने चेक किया था बट आगे नहीं चेक किया था, तो ये रेगुलर सिंगुलर है. तो एग्जाम में कभी भी ऐसे लिखा आता है कि क्लासिफाई द सिंगुलरिटी, और ऐसे कि फाइंड आउट द सिंगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट्स. तो आपको रेगुलर सिंगुलर तक नहीं करना है, आपको कंप्लीट करना है. रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर तक जाना है, राइट? ये क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, इसमें एक इरेगुलर एक सिंगुलर आ रहा है. रेगुलर इरेगुलर दो एक पॉइंट है, इसमें दोनों पॉइंट रेगुलर सिंगुलर आ रहा है. तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिखा दिए है, आपको करना है सॉल्व. चलो अब एक्चुअल टॉपिक अब शुरू होता है हमारा, जो 7 मार्क्स का सम मैंने बोला था.
ये तो हमने पहले का एक्सरसाइज कर लिया क्योंकि बीच में जरूरत रहेगी इसकी, इसीलिए। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करें ये मेथड उससे पहले। फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y double dash plus y is equal to 0 about x 0 is equal to 0. Now can you tell me, do we have another option to solve this differential equation? How many way we can solve this differential equation? Write down in chat box. जितने भी आइडिया आप प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स किए हैं, जितने भी मैथड्स किए हैं, जो भी आइडिया आ रहा है लिखिए। गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट करूंगा। अब चैट बॉक्स में लिखिए जितना। ये पावर सीरीज से नहीं, सुनिए, ये अभी मत देखो, ये पावर सीरीज मत देखो। हाँ, ये सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए और आप लिखिए कितनी डिफरेंट तरह से हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैथ सीखने का सबसे सबसे अच्छा तरीका यही है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आप सोचो पहले, फिर बाद में आप जाओ कि एक्चुअल मेथड क्या है। पहले तो सोचो ये दूसरा और मेथड तो नहीं है ना इसके सॉल्व करने, क्योंकि आपको एग्जाम में भी आइडेंटिफाई करना है कि ये मेथड से ही क्यों करना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लिखिए। अगर आप आंसर तक पहुंच पाते हो सॉल्व करके, तो वो भी सॉल्व करके आंसर भी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। Yes, I got 3 messages. कीर्ति पटेल ने लिखा है एफ डी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0. नो, नॉट करेक्ट. Try to solve it again using one variable separable. One variable, अच्छा OD, using OD ordinary differential equation, variable separable. वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में हायर ऑर्डर का बोल रहे हो ना? लिखिए लिखिए, क्यों नहीं लिख रहे आप लोग? इतना इजी तो है यार. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए पहले. क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हायर ऑर्डर से सॉल्व कर रहा हूं मैं. हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर में दो चीज आते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, सी एफ एंड पी आई. सी एफ एंड पी आई से सॉल्व कर सकते हैं. सी एफ क्या होगा इसका? इसके रूट्स क्या होंगे ये बताइए. चले, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? d is equal to plus or minus I. d is equal to plus or minus I are the roots. Correct. जिनल ने आंसर दिया है. You are correct, जिनल. Now think about complementary function. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? जो टेबल मैंने बनवाया था, याद करिए, हायर ऑर्डर में c1 cos x प्लस c2 sin x. करेक्ट करेक्ट. ओके, तो ये इसका आंसर है जब हम हायर ऑर्डर से सॉल्व करते हैं. ओके, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर ये हम ये मेथड से पावर सीरीज से सॉल्व कर रहे हैं हम. ये आंसर सेम ही आएगा, सेम आंसर आएगा. आपने जो लिखा ना वही आंसर आएगा, बट पावर सीरीज से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो स्टेटमेंट में यहाँ पे दे दिया है अबाउट x 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो 0 दिया है ना आपको, ये 0 पॉइंट, ये ऑर्डिनरी पॉइंट है. ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे दिया है. अगर ये नहीं दिया होता तो आपको ऑर्डिनरी पॉइंट निकालना पड़ता, और आपको कोई भी एक, ये सेंटर है x 0 इज इक्वल टू 0 सेंटर लिया है इसमें. तो अगर ये नहीं दिया होता तो आपको ये चेक करना पड़ता, जो हमने अभी क्लासीफाई द सिंगुलैरिटी किया ना, वो करना पड़ता. Because we can solve, we can take x0 a point which is only ordinary point. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है x0 is equal to 0 is an ordinary point. ऑर्डिनरी पॉइंट को ही हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. x0 हम किसको ले सकते हो? तो जो ऑर्डिनरी पॉइंट है उसी को ही ले सकते हैं, सिंगुलर को नहीं ले सकते.
ये मेथड का, ये मेथड में ये है, इसका कंडीशन है। तो कैसे, तो आप पहले डिस्कस करते हैं। अगर नहीं दिया होता है अबाउट x 0 = 0, तो y 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। सो व्हाट इज px? px क्या है? 0। ये अगर कंपैरिजन करो प्रीवियस मेथड अभी हमने जो डिस्कस किया उसके साथ, y डैश का कोफिशिएंट क्या है? तो 0 है, तो वो तो 0 है, इनफाइनाइट नहीं है। एंड qx इज 1। सो बोथ आर डिफरेंशिएबल, मींस यू कैन से बोथ आर पर्टिकुलर वैल्यू ना। So all points are ordinary point. There is no any singular point of this differential equation. So you can take x0 as any point. सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। आप इसमें अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया होता तो आप x0 की जगह पे यहाँ पे 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में ऑलरेडी दे दी है। चलो शुरुआत कैसे करेंगे? So let's take one power series y is equal to n 0 to infinite a n x minus x0 raised to n। ये पावर सीरीज जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमें ये इक्वेशन पावर सीरीज से सॉल्व करना है, इसलिए हमने ये पावर सीरीज गेस कर लिया। नाउ टेक x0 इज इक्वल टू 0। x0 की जगह पे मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया, तो ये मिला पावर सीरीज y। ओके, ये पावर सीरीज को ये फॉर्म में लिख सकते हैं a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube। नाउ फाइंड आउट द डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू यहाँ पे स्टेटमेंट में रखेंगे, ये इक्वेशन में। ओके, आप एक मेथड याद करिए, उसके साथ उसको कंपेयर कीजिए, सिमिलर है। अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में याद करिए हमने क्या कर रहे थे। अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में हम एक जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन गेस कर रहे थे, फिर उसके बाद उसके जो अननोन से ए बी सी उसके वैल्यू फाइंड करते थे। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, बट यहाँ पे हम y पावर सीरीज, जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन की जगह पे हम पावर सीरीज का यूज करेंगे, बस कंसेप्ट वही। तो हमें क्या चाहिए, y एंड y डबल डैश चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में y डबल डैश वाला टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर सीरीज का। यहाँ पे देखिए ये y है, उसका हमने डेरिवेटिव किया y डैश। तो y डैश का डेरिवेटिव an कांस्टेंट है एज इट इज, x इज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x इज टू n माइनस 1। बट यहाँ पे ये जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव किया इसके कारण। वो क्यों, तो मैंने यहाँ पे रीजन भी दिखा दिया है। तो आप देखिए ये सीरीज का डेरिवेटिव करिए, ये आपने इंडिविजुअल टर्म्स लिखे उसका डेरिवेटिव करिए। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 0 होगा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव a1, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव 2a2x। तो आप देखिए a0 वाला टर्म निकल गया, इसके कारण यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n1 to infinity लिख रहे हैं। व्हेन यू विल टेक सेकंड टाइम डेरिवेटिव, सो अगेन दिस टर्म विल बी 0। तो आपके दो टर्म 0 हो गए, 2a2 से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए n इज इक्वल टू 2 to infinite। तो दोनों का मीनिंग सेम है। आप ये फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और सिग्मा वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ओके, so when we are getting y dash and y double dash, we will substitute this value in differential equation. So given form of the differential equation is y double dash plus y is equal to 0. Now replace the value of y double dash and y। देखो ये जो डेरिवेटिव आया ना सिग्मा वाला, हमने यहाँ पे रख दिया। आपको ये सम थोड़ा लेंदी लगेगा, बट ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इजी है मेथड। चलिए ये सिग्मा वाला फॉर्म रख दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल शिफ्ट समेशन, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हाउ टू शिफ्ट द समेशन, बाय रिप्लेसिंग n। यहाँ पे हमें करना क्या है, एक्चुअली क्या जरूरत है हमें, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे x का पावर देखिए n-2 है, यहाँ पे x का पावर n है। सो वी वांट सेम पावर ऑफ x, कॉमन पावर ऑफ x, यानी दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसका x(n) है, तो इसका x(n-2) है। तो हम क्या करेंगे, ये जो n-2 की जगह पे हमें x(n) चाहिए। तो आप क्या करें भाई बताइए, n की जगह पे अगर हम n+2 रिप्लेस कर दे तो चलेगा, n की जगह पे n+2 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, हाँ तो हो जाएगा, राइट। n+2 -2 होके हो जाएगा, इसलिए तो n की जगह पे n+2 रिप्लेस करिए, तो ये होगा सिग्मा n0 to infinity n+2 n+1 an+2x, यानी ये पूरे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेट है x(n). सो वी आर रिप्लेसिंग n by n+2 टू ऑब्टेन द कॉमन पावर ऑफ x। हमारा टारगेट ये था, x(n) हो गया, दोनों कॉमन पावर हो गए। जैसे ही कॉमन पावर हो गए, अब आप क्या कर सकते हो, x(n) को कॉमन निकाल सकते हो, सीरीज भी कॉमन निकाल सकते हो, यानी n0 to infinity सिंबल को भी। Now we are equating the coefficient of x(n) to 0.
इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पे 0 है, यानी आप लिख सकते हो कि 0 + 0x + 0x² यानी सारे टर्म 0 है। x रेज़ टू n का टर्म क्या है राइट हैंड साइड पे, x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट क्या है राइट हैंड साइड पे, 0 है। बट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? So what is the coefficient of x raised to n? So we have two terms having x raised to n. So we will write down this way: n + 2 n + 1 an + 2 plus this term an. ये दोनों x raised to n वाले टर्म है, तो दोनों का कोएफिशिएंट हमने प्लस कर दिया और लिख दिया। तो यहाँ पे an + 2 है, ये टर्म में an है। So what about an + 2 in terms of an? an + 2 को हमने इसे फॉर्म में लिख दिया, where n should be n is greater than or equal to 0। ये कैसे लिखा? तो यहाँ से n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से इनफाइनाइट हो रहा है, इसीलिए। नाउ वी आर गेटिंग सम रिकरेंस रिलेशन। ये रिकरेंस रिलेशन है, इसमें से हम a2 a3 a4 सारी वैल्यूज मिलेगी। अच्छा, यहाँ शुरुआत करते हैं। n इज इक्वल टू 0 रखिए, यहाँ कहाँ से रख सकते हैं? n की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। n 0 रखोगे तो यहाँ पे a0 होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा? a2 होगा। तो आपको a2 से ही मिलेगा, a0 a1 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। अभी शुरुआत करिए, n की जगह पे 0 रखिए तो आपको मिलेगा a2 इन टर्म्स ऑफ a0, यहाँ पे मैंने रख दिया। a2 का ये आ रहा है, a3 आपको ये मिल रहा है। n आप जब 2 लोगे तो आपको a4 मिलेगा, बट राइट हैंड साइड पे a2 रहेगा। बट a2 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, ये रहा। ये दोनों मर्ज होके ये बन जाएगा a0। a5 भी आपको मिल गया। So all coefficients a0, a2 up to a infinite you will get in terms of a0 and a1। मिल रहा है? मिल गया? अब ये जैसे मिल गया, आप पावर सीरीज जो आपने गेस किया था शुरुआत में उसमें रख दीजिए, यानी यहाँ पे रख दिया। ये सीरीज है इंडिविजुअल टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ सीरीज, उसमें वैल्यूज रख दिया। a0 a1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, a2 का रख दिया, a3 a4 a5 सारे वैल्यूज यहाँ पे पावर सीरीज में रख दिया वापिस, और दो ग्रुप बना दिए, a0 और a1 का ग्रुप्स बना दो। a0 वाले टर्म्स कितने हैं वो अलग से लिख दिया सॉरी, a1 वाले ग्रुप लिख दिया। ओके, अब आप देखिए ये सीरीज किसका बन रहा है? ये कॉस का सीरीज है और ये साइन का सीरीज है। कॉस का और साइन का सीरीज बन रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है एवरी टाइम आपको किसी ना किसी फंक्शन का सीरीज मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी ना किसी फंक्शन का एक्सपेंशन मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ये फॉर्म में ही आंसर लिख देना है। ये लास्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, a0 cos x plus a1 sin x। राइट, आपने ये आंसर बताया था मुझे। आंसर क्या था ये डिफरेंशियल इक्वेशन का? c1 cos x plus c2 sin x। आंसर आ रहा है सेम? ओके, तो ये मेथड था पावर सीरीज के लिए। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, a0 a1 क्यों अननोन रह गए, उसकी वैल्यू क्यों हम रिकरेंस रिलेशन से नहीं फाइंड कर सकते? बिकॉज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ऑर्डर 2, उसका ऑर्डर क्या था? 2। सो उसके जनरल सॉल्यूशन में, व्हाट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन? General solution means the order of the differential equation and the arbitrary unknowns in the solution are same, then you can say it is general solution। तो दो तो unknown रहेंगे ही क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, इसीलिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का होता, थर्ड ऑर्डर का यानी y ट्रिपल डैश, इन दैट केस यू विल गेट a0 a1 एंड a2, तीन वैल्यू अननोन रहेगी स्टेटमेंट में, यहाँ पे लास्ट में आंसर में। क्लियर? तो आपको a0 a1 की वैल्यू नहीं मिलेगी, वो अननोन होगी। ये तो